Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture of chemistry. We are doing the chapter chemical bonding and I am your teacher Sumayya Khan. In today's lecture students we are going to learn an important theory known as valence shell electron pair repulsion theory or VSEPR theory. This theory will explain the shape and geometry of the molecule under consideration. Look, in our previous lectures, when we have discussed a theory which is proposed by Lewis and Kossel and which explained the nature of bonding between the molecules, we have learned how the molecule take part in the bond formation resulting in covalent and ionic bonds. Okay. In that discussion, we have never learned anything about the shape of molecule. Okay. Shape of molecule is also an important aspect of the molecule because on the shape of molecule its other chemical and physical properties also depends. Okay. Now this theory was proposed by Sidgwick and Powell in the year 1940 and it was refined and modified by Nyholm and Gillespie in the year 1957. So actually the theory which we are going to learn today is the modified form of theory. Now what does valence shell electron pair repulsion theory tells us? Now let's look into the rules of this theory. First understand what does the theory is used for. The theory is very helpful in explaining and determining, or you may say predicting, the shape of molecule. You can predict the shape of molecule with the help of the concept of this theory. Okay. Now how we can predict it? By considering the number of electron pairs in the valence shell of the central atom. Now here I want you all to keep in mind that here you are not going to take into assumption how the bond is made between the two atoms, how one is coming and sharing its electron with the other atom. Here when you think of a molecule, you think that the molecule is already there. What you are focusing here on is how in a molecule the pair of electrons which are present in the valence shell are arranging themselves in space. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल मौजूद है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स से बना हुआ है. इन एटम्स के आप वैलेंस शेल को कंसीडर कर रहे हो जिसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है. तो ये जो बॉन्ड है ये अपने आप को स्पेस में किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, वो जिस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का या ज्योमेट्री क्या होगी. शेप और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? हाउ द एटम्स are arranging themselves with each other in a molecule in space. यानी एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड बनाने में, वो अपने आप को किस तरह से लगा के जोड़ते हैं, उससे पता चलेगा कि इसका शेप किस तरह का होगा मॉलिक्यूल का. ठीक है. Now according to this theory, the bonded atoms in a molecule adopt that particular arrangement in space around the central atom, which keeps them on an average as far apart as possible. इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि मॉलिक्यूल ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट अपना करता है स्पेस में कि जो सेंट्रल एटम्स होते हैं वो जो अपने बॉन्ड्स को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि हर जो बॉन्ड है एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे हो. क्यों ऐसा है? जब आप बॉन्ड बोल रहे हैं तो बॉन्ड का मतलब होता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी. ठीक है. नाउ वी हैव मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है. नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? नेगेटिवली चार्ज्ड. सो दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड्स आर नथिंग बट द क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज. ये क्या होता है बेटा? ये एक नेगेटिव चार्ज का एटमॉस्फेयर हो जाता है जो एक बॉन्ड होता है. तो ऐसे जब बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज क्लाउड एक दूसरे के पास होंगे
तो हमको पता है like charges repel each other. So these negatively charged species or bonds are going to repel each other. To if they are repelling each other, अगर वो एक दूसरे को रिपेल करते जा रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, उनके अंदर एनर्जी आ रही है, विच इज़ नॉट द कंडीशन द एटम्स वांट्स टू एक्वायर. कोई भी एटम ऐसी कंडीशन नहीं एक्वायर करेगा कि उसकी एनर्जी राइज हो. दे विल गो फॉर द स्टेज और कंडीशन इन विच देयर एनर्जी गेट्स लोअर. So what they do, the atoms arrange themselves in such a way that bonds are arranged in such a way that these bonds are at maximum distance from each other that is possible for them. ठीक है, वो जितना एक दूसरे से दूर पॉसिबली हो सकते रहेंगे वो हो जाएंगे, ताकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन है वो कम से कम हो. ओके, नाउ ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, इट गिव राइज टू सर्टेन ज्योमेट्री. उससे अपने को क्या पता चलेगा कि किस तरह का शेप हो जाएगा मॉलिक्यूल का. ठीक है, नाउ लेट्स लुक इनटू सम रूल्स ऑफ दिस थ्योरी which helps us in predicting and understanding the geometry of the molecule. Shape, you can use the word shape and geometry, both are saying the same thing. Okay, now the first rule is what? Electron pairs arrange themselves in such a way that repulsion between them is minimum. यही बात मैंने बोली, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं मॉलिक्यूल में सेंट्रल में एटम के बीच में अंदर, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में कम से कम रिपल्शन हो. Second point says that the molecule acquires minimum energy and maximum stability. So when the electrons are arranging themselves in such a way, they are doing towards what? They are going towards acquiring the minimum state of energy, which means they are acquiring the maximum stability. जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज the lone pair of electron also contribute in determining the shape of the molecules. Now understand first what is mean by lone pair. When you look into the molecule, you may sometime find that in the valence shell of electron there is bonding pair, that is the pair of electron which is formed due to the contribution of electrons by the two atoms. ठीक है, जब आप एक मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको बॉन्ड्स जो आप दिखाते हो उसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है, वो कैसे आई है, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक दूसरे एटम ने दिया, वो आपके पास बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर दो एटम के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस हो रहा है. ठीक है, एक तो ये पहला एटम जिसका वो खुद का है इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरे वाला एटम जो शेयर कर रहा है. ठीक है, इसके अलावा कभी कभी आपको हो सकता है दिखे, इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि वैलेंस शेल में और भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी मौजूद है. ये जो और भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जो मौजूद है वैलेंस शेल में, बट इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. They are present in the form of pair, and that is what is known as lone pair of electron. The pair of electron that is present in the valence shell of an atom which does not take part in the bond formation is known as lone pair. Now this lone pair of electron will belong to that particular atom only. It is not under the influence of the two nucleus. The nucleus which is having the attractive effect on these pair of electron is only one. Suppose A नाम का एक एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये A जो एटम का न्यूक्लियस है वही उसके ऊपर इफेक्ट करेगा उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. Because of which what happens according to this theory, the lone pair of electron takes more space than the bonding pair of electron. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको
जगह ज़्यादा होती है, स्पेस ज़्यादा होता है, क्लाउड बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, वो मिनिमम रिपल्शन के लिए ही वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। नाउ व्हेन दे डू सो दे एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए और उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। फिर अब आपको एक और बात बताई जा रही कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी स्ट्रक्चर का शेप, मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करते हैं अभी एग्जांपल से हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। नाउ fourth point says that the repulsion of other electron pairs by the lone pair stronger than that of the bonding pair। अब यहाँ पे आप क्लियर करो कि मॉलिक्यूल में आप दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्जर्व कर सकते हो। एक है बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग पेयर मतलब बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बन रहा है और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो दो एटम्स के कंट्रीब्यूशन से आए हैं। ठीक है, और एक सेकेंड टाइप ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, नाउ द force with which these pair of electrons repel each other is different. The repulsion between the two bonding pair of electron is minimum। अगर आप दो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के नज़दीक करेंगे तो उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कंपैरेटिवली कम होगा अगर आपने बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर के जोड़ी से इसको कंपेयर किया। यानी अगर एक बॉन्डिंग पेयर है और उसके पास दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेंगे। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा फोर्स से रिपल्शन होगा जब दो लोन पेयर्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। सो द लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, then we have the lone pair and bond pair repulsion, and bond pair repulsion is the minimum। okay, why does this happen? I have explained that lone pair repulsion is maximum because the electron pair present in the lone pair is under the influence of only one nucleus, okay, and it gives it more space, while the bonded pair is shared between the two nuclei and it's stretched between the two atoms, because of which it has less space or cloud। okay, therefore the repulsion due to bonding pair is less as compared to the repulsion that is due to the lone pair। Thus the number of lone pair and bonded pair of electron decides the shape of the molecule। इस तरह से क्या होता है कि जो लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर है वो मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं। अब किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। यानी अगर आपको पता हो कि इतने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इन अ मॉलिक्यूल, तो आप बता सकते हो कि इसकी ज्योमेट्री ये होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ अ सेंट्रल एटम इज 2। एक सेंट्रल एटम है जिसके पास टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग पेयर है। ठीक है, लोन पेयर नहीं है, ये कैसे? नॉर्मल बॉन्डिंग पेयर से। तो टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अरेंज कैसे होंगे वो आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कार्बन एंड टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स वन कार्बन टू ऑक्सीजन। सो कार्बन इज योर सेंट्रल एटम and two oxygen are your surrounding atom। ठीक है, now these surrounding atoms will keep themselves as far apart as possible। दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएंगे ताकि वो मिनिमम रिपल्शन ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस दो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल ही हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस तरह से जो ज्योमेट्री और जो शेप वजूद में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री।
ठीक है। एग्जाम्पल ये है यहाँ पे बेरिलियम डाइब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से बेरिलियम डाइफ्लोराइड और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, इफ यू हैव 3 pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर ऑफ। कौन से पेयर हैं ये याद रखना, बॉन्डिंग पेयर है, यानी ये तीन की तीनों कैसे हैं, 3 बॉन्ड्स है, ठीक है। इफ सच थिंग विल हैपन, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ BCl3, जिसमें बोरॉन जो है सेंटर में है और 3 क्लोरीन सराउंडिंग एटम है। Now these 3 chlorine will keep themselves at a maximum distance from each other. अब दिस इज अ प्लेनर ज्योमेट्री, ये क्या है, एक ही प्लेन पर है, यानी आप पेपर पे से ड्रॉ करोगे तो आप सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये पेपर पे आ जाएगा, प्लेनर है, ठीक है। तो एक प्लेन पे अगर आपको एक सेंटर में 3 पॉइंट्स को अटैच करना है तो आप मैक्सिमम डिस्टेंस आपके पास प्लेन में कितना है, 360 टोटल एंगल है, 360। तो आप कैसे करोगे, उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हो, यानी हर दो के बीच में कितना एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। दिस इज हाउ द एटम्स विल अरेंज सो एज टू अक्वायर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ओके। सो द ज्योमेट्री विच विल गेट ड्यू टू दिस विल बी नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और BF3, BCl3 एंड BH3। यहाँ याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ 3 बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जो कि बॉन्डिंग में लग गए, तो उसके पास 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ कार्बन। कार्बन हैव 4 पेयर में गेट 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे मीथेन का, जिसमें कार्बन जो है आपका सेंट्रल एटम है और 4 हाइड्रोजन्स आर द सराउंडिंग एटम। अब ये जो है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी ये आप पेपर पे जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये समझ के चलना कि दिस इज़ नॉट ऑन द पेपर, ओके, दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होएगा, जो 4 हाइड्रोजन है एक टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर में जा रहे हैं और सेंटर में टेट्राहेड्रॉन के क्या है, कार्बन एटम है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है अमोनियम आयन NH4 एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह से अगर 5 रहेंगे तो यू विल हैव द ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 6 वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आपके पास ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नाउ लेट्स सी हाउ डू दे अरेंज देमसेल्फ, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड। सेम चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स को 180 डिग्री के डिस्टेंस पे रख देगा वो, जिसकी वजह से लीनियर ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की। इसी तरह से अगर उसके पास 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो 120 डिग्री के एंगल पे रख देगा एक प्लेन पे, और जो ज्योमेट्री आएगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब रहती है, जब 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंटर में आपका सेंट्रल एटम है और वो जो 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से 109.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ओके। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस which they can acquire, which that how far they may keep themselves। इतना ही मैक्सिमम डिस्टेंस वो एक दूसरे से रख सकते हैं और वो रखेंगे, जिसकी वजह से they will acquire the tetrahedral geometry। अब देखो इसी तरह से 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, समझ लो 2 टेट्राहेड्रॉन है, उनको आप बेस से उनकी ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन आपको पता होगा, टेट्राहेड्रॉन इज लाइक अ शेप ऑफ पिरामिड। तो 2 पिरामिड को आप उनके बेस से, उनकी बुनियाद से ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी ये ऑक्टाहेड्रल के लिए था, 2 पिरामिड्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी एक ट्राइंगल बना हुआ है आपके पेपर पे,
और उस पेपर के सेंटर से ऊपर एक लाइन निकली है और नीचे एक लाइन निकली है, ठीक है। तो जो पेपर पे 3 एटम्स हैं आपको दिख रहे हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बना के रखे हैं, और वो जो सेंटर में आपका एटम ए है उसके ऊपर एक 90 डिग्री के एंगल बन रहा है और नीचे भी एक 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी पेपर के ऊपर भी एक एटम लगा हुआ है, पेपर के नीचे भी एक एटम लगा हुआ है बॉन्ड से, ठीक है। 6 है, अगर 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। यहाँ पे आप सोचो कि 2 पिरामिड्स को बेस से ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो वो जो बेस वाली लाइन प्लेन होगा उसके अंदर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ऑल आर हैविंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, और वो अबव द एंड बिलो द प्लेन इज ऑल्सो 90 डिग्री। एग्जाम्पल इज SF6। इतना इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आई सेड दैट दीज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी एज्यूम एज व्हाट, द balloons. So if we have 2 bonding pairs, it means you have 2 balloons. When you have the 2 balloons, it will give rise to the linear geometry. If you have 3 bonding pairs, it means you have 3 balloons. अगर आप 3 बलून को एक साथ पकड़ोगे तो उनको किस तरह से एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी दोगे, तो वो हो जाएगी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। 4 balloons are arranged like tetrahedral. 5 balloons will give trigonal bipyramidal. देखो 3 बलून ऐसे पकड़े हो और एक ऊपर लगाया है एक नीचे। 6 बलून है तो आपने 4 बलून को एक ही प्लेन में रखा है और एक बलून ऊपर है एक बलून नीचे है, जिसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। ये आपको एक अजम्पशन दिया है कि किस तरह से वैलेंस शेल को सिर्फ माइंड में रखते हैं और किस तरह से सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दूसरे एटम्स अटैच्ड हो रहे हैं इन बॉन्ड्स के जरिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट when we have these many bonding pairs of electron in the valence shell of the central atom. ऐसी रेगुलर ज्योमेट्री आपको कब मिल जाएगी, जब आपके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, BeCl2. BeCl2 has electronic configuration 1s2 2s2. There are 2 electrons in the valence shell of the beryllium. It makes 2 bonds with the chlorine atom. ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो अक्वायर कर रहा है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद द chlorine. So ClBeCl angle is 180 and it give rise to linear geometry. मीथेन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन है सेंटर में, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं और ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन मेकिंग 4 बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन। तो आपके पास बॉन्डिंग पेयर हो गए 4, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी और ये इनके बीच में बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 109.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 4 के 4 यूज हो गए फॉर मेकिंग द बॉन्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो दिस इज द रेगुलर ज्योमेट्री विच वी हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, it is convenient to divide molecules into 2 categories. Number 1 is molecule in which the central atom has no lone pair, and number 2 the molecules in which the central atom has one or more lone pairs. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को प्रिडिक्ट करने के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स अंडर डिस्कशन है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या इसके अंदर वैलेंस पेयर में वैलेंस शेल में सिर्फ बॉन्डिंग पेयर है या लोन पेयर भी है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
विदाउट एनी लोन पेयर तो आपको रेगुलर ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर दोगे वो टेबल के हिसाब से, यानी 2 लोन बॉन्डिंग पेयर है तो लीनियर, 3 बॉन्डिंग पेयर है तो ट्राइगोनल, 4 बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टेट्राहेड्रल, लाइक दैट। लेकिन अगर लोन पेयर उसके अंदर है तो फिर ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सच मॉलिक्यूल्स विल बी व्हाट, द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम possesses lone pair. Now when the lone pair is there, what influence it will have on the geometry of those molecules? Let's see. Take an example here. A type of molecule is here which is written as, hypothetically we are taking AB2E. अब इसमें आपको पता होना चाहिए A is your central atom, B is your surrounding atom, and E represents the number of lone pair present on the central atom, ठीक है। तो A आपके पास क्या है, एक एटम है कोई, B भी कोई दूसरे एलिमेंट का एटम है, और E क्या है, ये कोई एटम नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर। 1E मीन्स 1 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम A, ठीक है, यानी A के साथ एक लोन पेयर भी है। अब देखो सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ लोन पेयर क्या दिया है 1, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स क्या दिया है 2। तो अगर आप सिर्फ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखोगे AB2E तो उसी से आपको पता चल जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल है 2 बॉन्ड बना रहा है B के साथ, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 2 है। E एक लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, और लोन पेयर किस पे मौजूद होता है, सेंट्रल एटम पे, ठीक है। नाउ वन एग्जांपल इज गिवन SO2. In SO2 the sulfur is making 2 bonds, double bonds with 2 oxygen atom. अब यहाँ पे पहले डिस्कस नहीं किया है, लेकिन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, एक बॉन्डिंग पेयर, 1 बॉन्डिंग पेयर के जैसे, सुपर बॉन्डिंग पेयर जैसे। यहाँ पे आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, लेकिन उसको 4 बॉन्ड नहीं कंसीडर करना है। इफ डबल बॉन्ड इज देयर बिटवीन द 2 एटम्स, सेम 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक बॉन्डिंग पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सल्फर इज मेकिंग 2 डबल बॉन्ड्स विथ 2 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि 2 बॉन्डिंग पेयर्स आर देयर। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 2 बॉन्डिंग पेयर हैं सल्फर के पास, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, लीनियर होनी चाहिए थी, जैसा अगर रेगुलर वाला मेथड यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सल्फर, दैट येलो atom which is shown here. Now due to the presence of that lone pair of electron, that lone pair of electron repels the bonding pair. अब वो क्या करता है, लोन पेयर जो ऊपर है सल्फर के, वो रिपेल करता है अपने बॉन्डिंग पेयर को जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, बिकॉज ऑफ विच द एंगल बिटवीन देयर गेट रिड्यूस्ड, उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम हो जाता है, और मॉलिक्यूल लीनियर से क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है, ठीक है। एंड वील गेट व्हाट, अ बेंट ज्योमेट्री और एंगुलर ज्योमेट्री। इसको बेंट बोलते हैं, एंगुलर कहते हैं, या वी शेप बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। AB3E, अब AB3E दिख रहा है आपको, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स आर 3 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1। अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर द ज्योमेट्री गेट डिस्टॉर्टेड। अब क्या होएगी, AB3 के हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, यानी एक प्लेन पे आप एक ट्राइंगल बनाते और 120 डिग्री का एंगल रहता है हर एटम के बीच में। लेकिन अब हमको क्या दिख रहा है, द एंगल इज रिड्यूस्ड एंड इट इज 106.7 डिग्री। In the same way you can analyze that due to the presence of these lone pair of electron, the shape of the molecule is changed. Okay, now you have to go through and you have to memorize each of these changes. Now let's discuss some examples. Let's take the example of ammonia. In ammonia
The ammonia is made up of 1 nitrogen and 3 hydrogen. Okay. Now the electronic configuration of ammonia nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. It has 7 electrons and there are 5 electrons present in the valence shell. Out of these 5 electrons, 3 electrons are shared with the electrons of 3 hydrogen atom to make the 3 covalent bond. अब 3 जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना रहे हैं 3 हाइड्रोजन एटम से. ठीक है. 2 of the valence shell electrons are left. 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बच जाएंगे. These 2 electrons will make what? Will take a space in the structure. तो अब ये टेट्राहीड्रल हो जाएगा स्ट्रक्चर, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन because of the presence and influence of this lone pair of electron, the nitrogen hydrogen bond angle get reduced and we have the distorted tetrahedral structure giving rise to trigonal pyramidal structure. ठीक है. यहाँ पे एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री थी टेट्राहीड्रल क्योंकि इसके पास 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 3 बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग यानी ये लोन पेयर. ठीक है. तो 4 जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है हमारी टेट्राहीड्रल. लेकिन यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच repels the bonding pair of electron and reduces the angle between them. यहाँ एक्सपेक्टेड एंगल 109 था लेकिन 107 ऑब्जर्व हो रहा है because of this lone pair of electron. Okay. So here the reason is given. In ammonia molecule there are 3 bonding pairs and 1 lone pair. Since the lone pair is flatter and occupies more space around the central atom, it can interact more and therefore it will repel the electron pairs in the neighboring orbital, resulting in reduction in the bond angle and distortion of the geometry. ठीक है. अब अमोनिया मॉलिक्यूल को देखते हैं. वही बात जो हमने अभी बताई है उसी को वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है. आप देख लेना ये फ्रीज करके. लोग यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है अमोनिया का, उसका स्पेस ज़्यादा होने की वजह से और उसका रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, अपने को ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर देता है इंस्टेड ऑफ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर लाइक मीथेन. नाउ लेट्स सी वाटर मॉलिक्यूल. In water molecule we have the formula H2O. O is your central atom, oxygen is central and hydrogen are surrounding atom. In this the oxygen makes 2 bonds with 2 hydrogen atom. We know the electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2 and 2p4. So there are 6 valence electron in the central atom of oxygen. ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. आउट ऑफ दिस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 आर यूज इन मेकिंग बॉन्ड विद द हाइड्रोजन. तो अब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के बाद आप देखोगे देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन. Out of these 8 electrons, 2 are bonding pair of electrons. जो 4 हैं वो 2 pair of electron bonding pair of electron बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ. But 4 are left unused and are present as the 2 lone pairs of electron. जो बाकी के जो 2 बचे हैं 1, 2, 3, 4 वो लोन पेयर के जैसे बचे हुए हैं. ठीक है. Now we know that the repulsion between the 2 lone pair is maximum. अब सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में. इनके बीच में भी रिपल्शन हो रहा है. फिर ये जो लोन पेयर्स हैं वो बॉन्डिंग पेयर जो वाइट स्टिक से दिख रहा है उसको भी रिपेल कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ इट व्हाट हैपेंस, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड थी. वाई टेट्राहीड्रल वाज एक्सपेक्टेड? बिकॉज we had
with the central atom, which is shown with red here, oxygen. It had 4 pair of electron in its valence shell. इसके valence shell में हमको 4 pair, 4 दिख रहे थे इलेक्ट्रॉन पेयर की जोड़ी, ठीक है। उसमें से 2 तो हाइड्रोजन के साथ बनाया बॉन्डिंग पेयर और 2 ने बना लिया लोन पेयर। अब हमको बताती है थ्योरी कि लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम. So lone pairs of electron will repel each other, and these lone pair will also repel the bonding pair. Because of that repulsion, the structure of the water molecule is bent or angular or V-shaped. It is not tetrahedral. So expected was tetrahedral, but due to the presence of the lone pair, the geometry get distorted, and what we get here, we get the bent water molecule. The geometry of water molecule is bent with an reduced bond angle of 104 degree 35. एक्सपेक्टेड था 109 जो कि टेट्राहीड्रल में होता है, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है अपने को 104 डिग्री 35 सेकेंड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू दिस अगेन, read it 2-3 times. You will get the better understanding of the theory. It is very simple. You just have to remember that this theory helps in predicting the shape of molecule by taking into account how many electron pairs are present in the valence shell of central atom. किसी भी molecule के central atom में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उससे आप बता सकते हो कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। अब जब आप ज्योमेट्री बताने जाओगे तो ध्यान रखोगे कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अपने सेंट्रल एटम के पास, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह के, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इफ़ ऑल आर बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप सिंपली बोलोगे 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल, 4 है तो टेट्राहेड्रल, लाइक दैट। लेकिन अगर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है मॉलिक्यूल के पास, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इफ़ वन लोन पेयर इज देयर हाउ द डिस्टॉर्शन विल अकर। एक एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ये थी, लेकिन अब एक लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो गई है, ठीक है। 2 लोन पेयर रहेगा तो फिर अलग ज्योमेट्री पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द entire rules and the expected and observed geometry of some molecules. Okay, I hope you all have understood the Vesper theory nicely. Allah Hafiz.